Hello dear students, welcome back to the class. Today we have a very interesting topic from mathematics, that is integers. So in this chapter we will cover up the things like introduction, number line, absolute value of an integer, opposite and additive inverse, arithmetic operations of integers like addition, subtraction, multiplication and division. So dear students, before we begin the chapter we should know what is an integer. So an integer is a number which does not have a decimal or a fractional part. अब देखो यहाँ पर एक ऐसा नंबर होता है इंटीजर जिसके अंदर डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है. डेसिमल, लेट अस टेक एन एग्जांपल 2.7. तो ये डेसिमल फॉर्म में है तो हम इसे इंटीजर नहीं बोलेंगे. फ्रैक्शनल पार्ट, द नंबर्स विच आर इन p by q form, it means let us take an example like 5/8. So ये भी integer नहीं है because it is in fractional part. Another point, an integer may be positive, that means greater than 0. Positive integers क्या हो सकते हैं like +5, +2, +8. यहाँ पर ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है. It is not important to write the sign of plus or positive sign. Okay, because it is considered that if there is no sign it means the number is positive. An integer may be negative, that means less than 0. We can take here like number -2, -5, -8. So these numbers has negative sign with them. Okay, so these are also integers. अब अगर यहाँ पर सिंपल टर्म में और बोला जाए तो एन इंटीजर में भी जीरो भी हो सकता है. इंटीजर जीरो, फॉर एग्जाम्पल you can see here on the screen 1, 3, 6. These numbers are positive integers. The numbers in green color 1, 3, 6. An integer may be 0 also. Okay, -12, -24, -56. So these all are integers. It means positive and negative also, including 0. Numbers that are in fraction or decimal are not integers. Please note down this. इस पर फोकस करो आप लोग कि numbers that are in fraction or decimal are not integers. I hope so you understood it very well. Now let us learn about number line. So the definition is here on the screen. A number line is a pictorial representation of numbers evenly laid out on a straight line with markings to represent numbers. यहाँ पर एक पिक्चर के फॉर्म में आपके सामने नंबर लाइन है और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी जिसके ऊपर मार्किंग्स है और उन मार्किंग्स पर नंबर्स दिए हुए हैं. अब नंबर्स भी आपको कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप में दिखाई दे रहे होंगे. एक्चुअली दीज नंबर्स फ्रॉम हियर 0 से राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव, एंड 0 की लेफ्ट हैंड साइड में सारे निगेटिव नंबर्स हैं. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेफ्ट to 0 and all positive numbers are right to 0. And here this arrow indicates, ये आपको याद रखना है, ये जो एरो हेड है ये इंडिकेट करता है कि लाइन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स है यहाँ पर इस लाइन पर. ओके, दिस एरो विल एक्सटेंड टू इंफिनिटी. ओके, दिस एरो हेड इंडिकेट्स द इंफिनिटी साइन. मतलब यहाँ पर कितने भी आगे तक -6, -7, -8, -9, -10 till infinity. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 infinite numbers can come on this number line. Now here I will tell you about some important points to remember. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा important है क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं. So a negative integer, let us take any one. Let us say number -7. Okay, this is a negative integer. So negative integer is always smaller than 0. A negative integer is always smaller than 0. And 0
will be smaller than a positive integer. Let us take any positive integer like if I take 5. So 5 is a positive integer and 0 is smaller than a positive integer, and here a negative integer is always smaller than 0. I hope you understood this. One more thing I will tell you. Here if I write this one -1 and -3, can you tell me which integer is greater? Obviously, here the integer -1 is greater than -3. Now you can see here on the screen there are some basic examples for you to understand properly. So the first one is which integers lie between -4 and 3. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है दैट इज बिटवीन। बिटवीन हमेशा हम यूज करते हैं टू पॉइंट्स के बीच में जो कुछ भी है, यहाँ पर लेट अस से दीज आर 2 पॉइंट्स और इसके बीच में जो भी कुछ है इन दोनों को छोड़कर इन्हें काउंट नहीं करना है, वो रहेगा बिटवीन। सो सबसे पहले आप पॉइंट आउट करोगे कि -4 कहां पर है एंड हियर इट इज एंड देन +3। अब इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स जो भी इंटीजर्स है उन्हें ही सिर्फ आपको लिखना है, उन्हें ही काउंट करना है। ओके, सो लेट अस टेक इट। Here it is given -3, -2, -1, 0, 1, 2. These are the integers that they lie between -4 and 3. The next one is -5 greater than -8? The answer will be yes, because here I will give you the reason for this. एक आपको ट्रिक याद रखना है कि माइनस में, निगेटिव में जितना छोटा नंबर वो उतना बड़ा सबसे, इन negative numbers only. Okay, like let us say if I write here -1, so it is greater than -100. I can write here like when we see at 100, so it looks like it's a greater number, right? तो ये ऐसा लगता है हमें -100 बड़ा होगा, but actually -1 is greater. If I write here -2 and -10, so यहाँ पर -2 is greater than -10. I hope you understood this. The next one is -1 less than 0? So here answer is yes, because always, I have told you before this also, the negative integers are always less than 0. The negative integers are always less than 0. I hope you understood well. Now in your exams these kind of questions may also come, या फिर आपके बुक में या एक्सरसाइजेस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन्स हियर वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं होता है, एक्चुअली ऑपरेशन मीन्स हियर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑलराइट, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर लाइन पर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमें इसे बहुत ही इजी वे में सीखना है। लुक हियर, यहां पर आपको दिया है 2 + 3। ओके, अब आप किस तरह से नंबर लाइन पर इसको लोगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 कहां पर है। आपको मिल गया 2, यस, हियर इट इज 2 यहां पर है, और +3 यहां पर 2 के बाद में 3 डिजिट्स आगे जाना है आपको। 2 के बाद में 3 डिजिट्स आगे जाना है, मतलब फ्रॉम हियर इट इज 1, 2, 3 and here we comes on number 5, so its answer will be 5. I hope you are understanding well. Then comes -1, -4। अब यहां पर आपको सबसे पहले देखना है -1 कहां पर है। yes, here it is। -1 के आगे हम -1 से आगे -4 तक जाएंगे,
-1 से आगे -4 तक, मतलब यहां पर 4 डिजिट्स हम आगे जाएंगे, -4 डिजिट्स आगे जाएंगे। 1 2 3 4, इट मीन्स द आंसर विल बी -5। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अब इसके बाद में है -5। यहां पर आपको -5 सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। अब 7 डिजिट्स आपको आगे जाना है। 7 डिजिट्स आगे मतलब पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में। हियर इट इज। अब 7 टाइम्स हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हम पहुंच गए हैं नंबर 2 पर एंड योर आंसर विल बी 2। I hope you understood the trick very well. Now let us learn about an absolute value. So what is an absolute value? So the definition is on the screen. An absolute value is the distance irrespective of its direction of a number from zero on the number line. अब देखो इसे हम इस तरह से समझ लेंगे, वेरी सिंपल। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्किंग्स है, ठीक है। 0 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 एंड -3। यहाँ पर हमें डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आपको पता है कि 0 से राइट हैंड साइड की ओर सारे पॉजिटिव नंबर है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर सारे निगेटिव नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमने डेफिनेशन में जैसा कि पहले ही देख लिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है कुछ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्टेंस। ओके। अब मान लो यहाँ पर एक वैल्यू है -3, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 3। सिर्फ हमें डिस्टेंस काउंट करना है इस 0 से इस 3 तक। ओके, सो डिस्टेंस कितना होता है 1 2 3, बस इतना काउंट करना है, काउंट करना है सिर्फ। पॉजिटिव है या निगेटिव है इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। व्हाई? बिकॉज इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। नंबर लाइन पर कौन से डायरेक्शन में है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको देखना है आप कितने यूनिट्स आगे जा रहे हो, उतने यूनिट्स गिनना है, वही रहेंगे आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इज रिटन इन बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस। और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आए या निगेटिव नंबर आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। Answer will be only the positive integer. Here you can see an example, -3, the absolute value of -3 is 3. The absolute value of 0 is 0. The absolute value of +7 is 7. I hope you understood very well. आपको सिर्फ ये देखना है कितने डिस्टेंस आगे जा रहा है या इस साइड जा रहा है, कितने, जस्ट काउंट द नंबर, प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है। So dear students, here are 3 questions on the screen and you have to find out the absolute value for these questions. Pause the video and try to find out the correct answer. And the correct answers are here on the screen. 45, 12, 1। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आप निकालते हो तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, द आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। I hope your answers are also correct.
Now let us learn opposites and additive inverse of integers. So if the sum of two numbers is equal to 0, अगर से दो नंबर्स है और उनका सम मीन्स एडिशन, उनका एडिशन इक्वल टू 0 होता है, तो वो दो नंबर्स क्या कहलाते हैं? एडिटिव इनवर्स और निगेटिव्स ऑफ ईच अदर. हियर इज एन एग्जांपल. यहाँ पर प्लस का 3 और माइनस का 3, इन दोनों की हमने एडिशन की और उसका आंसर आया 0. सो +3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3. ओके. अब आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके लिए. फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा यहाँ पर? -2. अगर से प्लस का 5 है, तो एडिटिव इनवर्स -5. If here is -10, so additive inverse 10. Okay, I hope you understood this. Here are some important words to remember. आपको इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इनकी टर्मिनोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए. सो जब कभी भी आप प्रॉफिट ये वर्ड देखो क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको एडिशन करना है, नंबर्स प्लस में आने वाले हैं. ओके. इफ यू फाइंड अ वर्ड दैट इज लॉस, इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन करना है. यहाँ पर मैंने ऑपरेशंस लिखे हैं, आपको कौन सा करना है, यहाँ पर एडिशन और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन. सो ये सारे जितने भी वर्ड्स है, ये जब कभी भी आपको दिखाई देंगे वहां पर पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और ये वाले वर्ड्स आपको जहां पर भी दिखाई देंगे वहां पर निगेटिव इंटीजर आएगा, वहां पर आपको सब्ट्रैक्शन करनी होगी. सो प्रॉफिट, लॉस, above, below, win, lose, ahead, behind, forward, backward, deposit, withdraw, increase, decrease, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है. ascend, descend. सो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखना है और कौन सा ऑपरेशन करना है आपको ये बात पता होनी चाहिए. ये सारे वर्ड्स के लिए एडिशन, ये सारे वर्ड्स के लिए डिवीजन. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. The question is write integers for the following. First one, delay by 6 minutes. आपको ये समझना है कि डिले मतलब लेट हो रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू माइनस में आएगी. 60 मीटर अबाव सी लेवल, अबाव मीन्स ऊपर की ओर जा रहा है, इट मीन्स इट विल इंक्रीज, सो इट विल बी +60 मीटर. लॉस ऑफ 400 रुपीज, लॉस मतलब यहाँ पे कम हो रहा है, ओके, नुकसान हुआ है, सो इट विल बी -400 रुपीज. विड्रॉल ऑफ 500 रुपीज, विड्रॉल मतलब हमने जो भी अमाउंट था हमारा उसमें से कम हुआ है, ओके, डिक्रीज हुआ है, सो इट विल बी -500 रुपीज. विन बाय 5 रन, इट मीन्स आपकी जीत हुई है, तो जीत हुई है मतलब यहाँ पर समथिंग हैज बीन, यू हैव गेन्ड समथिंग, ओके, सो इट इज +5. So we have learned about some words. Let us check that how much you understood. So pause the video and try to write the correct answers. So here are the answers on the screen. Write the opposites of the following: below, above. Do check your answers. Down, up, east, west. Increase, decrease. Deposit, withdraw. I hope your answers are also correct. If the answers are correct, drop a thumbs up in comment section. Now let us compare the following. I have taught you that the positive number or positive integer will be always greater than a negative integer. So you know the rules very well. Pause the video and try to write the correct answers. The correct answers are here on the screen. +3 is greater than -3. Second one, -5 is less than 0. Third, 43 is greater than 33. I hope your answers are also correct. Now let us learn the addition of integers. किस तरह से हम ऐड करेंगे दो इंटीजर्स को. एक बात आपको याद रखना है कि इंटीजर may come नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके.
फॉर एडिशन। और एक और बात आपको याद रखना है कि आप एडिशन कर रहे हो तो प्लस की साइन दोनों इंटीजर्स के बीच में लगाना है। सो द फर्स्ट वन हियर वी हैव दैट इज 60 एंड -10। तो यहाँ पर आप 60 लिख लोगे और हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए प्लस का साइन लगाया हमने। और इस -10 को आपको इस तरह से लिखना है इन राउंड ब्रैकेट -10 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के रूल है एडिशन करते समय, आपको ये बात याद रखना है। प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट खुल जाएगा और ये 10 ब्रैकेट के बाहर रहेगा। सो प्लस माइनस माइनस 10 एज इट इज। सो 60 minus 10, 50. The answer is plus 50. The next one, -30 -20। यहाँ पर दोनों भी इंटीजर्स निगेटिव है, माइनस में है। ओके, सो यू शुड रिमेंबर while you're writing, write them in brackets, ब्रैकेट में लिख दो इसे। अब इन दोनों के बीच में एडिशन होगी, सम होगा। ओके, and -20 you'll be writing in bracket like this way. Okay, now here -30 plus -20, -30 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, प्लस माइनस, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो it will become minus, plus minus minus, and when we will open the bracket 20 will come out. अब आपको यहाँ पर एक और रूल याद रखना है, माइनस माइनस। ओके, जब दो इंटीजर्स इस तरह से आते हैं माइनस माइनस, तो आपको वहां पर एडिशन करना होता है। ओके, वहां पर आपको एडिशन करना होता है। सो चलो पहले हम एडिशन करते हैं। 30 plus 20 इट विल बिकम 50। अब हमें ये कंफ्यूजन होता है कि साइन कौन सी लगाए हम, ओके, प्लस की या माइनस की। तो यहाँ पर एक सिंपल रूल आपको याद रखना है, जो कॉमन साइन है, दोनों इंटीजर्स को जो कॉमन साइन है वो आपको लगाना है। अब यहाँ पर माइनस माइनस, अगर कॉमन साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर कॉमन साइन प्लस होती थी दोनों की भी तो यहाँ पर प्लस आ जाता था। ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज 15 -13 16। तो आपको यहाँ पर इनकी एडिशन करना है। 15 प्लस, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, 15 प्लस, अब -13 को ब्रैकेट में लिखना है आपको, देन प्लस 16। 16 और 15 यहाँ पर प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको यहाँ पर साइन लगाने की जरूरत है। लेकिन ये जो साइन है यहाँ पर हमने जो प्लस के साइंस लगाए हैं, एक्चुअली इट इज फॉर द एडिशन। तो चलो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट में 13 है उसे बाहर निकालते हैं। तो बाहर जब आप इसे निकालोगे तो इसकी साइन भी चेंज होगी। ओके, सो 15 प्लस माइनस इट विल बिकम माइनस, 13 को बाहर निकालते हैं, प्लस 16। नाउ हियर यू विल राइट द पॉजिटिव इंटीजर्स इन द बिगिनिंग। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले लिखना है और उसके बाद में निगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर 15 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको यहीं पर रहने दो, प्लस 16 पॉजिटिव है तो इसको यहाँ पर लिख लो, 13 निगेटिव है, माइनस वाला है, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे 13। चलो अब इन दोनों के एडिशन करेंगे। सबसे पहले 6 + 5 11, 1 + 1 2, माइनस एज इट इज 13 यहाँ पर, एंड द फाइनल आंसर विल बी 11 - 3 8। यहाँ पर 2 का 1 हो जाएगा, 1 - 1 1। दिस इज द फाइनल आंसर 18। आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर बिगिनिंग में लाना है, शुरुआत में लेकर आना है। 15 भी यहाँ पर पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको कहीं पे शिफ्ट नहीं किया, तो 15 यहीं पर ही है। 16 की प्लेस हमने यहाँ पर चेंज की, +16, और -13 हमने यहाँ पर लिखा लास्ट में एज इट इज। आपको एक बात और याद रखना है कि इनके साइन के साथ इन्हें शिफ्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ लेट अस लर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आपको एक बात याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन के थोड़े अलग रूल्स होते हैं और एडिशन में अलग रूल्स होते हैं।
So the first one is given here, minus 30 minus 10. So let us find the solution. I'll be telling you the rules, okay, one by one. मैंने एक साथ rules इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको उसमें confusion हो सकता है. सारे rules एक साथ आने के बाद हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा रूल किसके लिए अप्लाई करना चाहिए और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो प्रैक्टिकली विल बी सॉल्विंग हियर और आपको रूल्स नोट डाउन करना है और याद रखना है. सो लेट अस स्टार्ट. माइनस 30 और हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए माइनस की साइन आएगी और इस माइनस 10 को लिखने का ये मेथड होता है कि राउंड ब्रैकेट बनाकर इसे अंदर लिखा जाए एंड ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो माइनस 30. अब यहाँ पर एक रूल है आपको याद रखना है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. इस तरह से जब कभी भी आप देखो इस ब्रैकेट को अगर खोलना है, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस और 10 जब बाहर आएगा तो ये भी पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा. देन one more rule comes here, that minus one integer is negative and one integer is positive. जब कभी भी इस तरह से आप देखो एक इंटीजर निगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, सो हियर यू विल डू सब्ट्रैक्शन. आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा. ओके, यू विल डू सब्ट्रैक्शन हियर. अब जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे आंसर लिख लेंगे. सबसे पहले 30 minus 10 it will become 20. Now here comes one more question in our mind, that what sign we should write. यहाँ पर कौन सी साइन लिखना है, माइनस की या प्लस की. तो इसके लिए रूल ऐसा है कि यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है उसकी साइन आपको यहाँ पर लगाना है. सो ग्रेटर नंबर इज 30, उसकी साइन है माइनस निगेटिव, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका माइनस 20. द नेक्स्ट वन, माइनस 15 माइनस 9. अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना है. सो चलो आंसर हम निकालते हैं. यहाँ पर माइनस 15 सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यहाँ पर एंड माइनस 9 अनदर इंटीजर, सो यू विल पुट इट इनटू ब्रैकेट. ये रूल हमेशा याद रखो कि इसे ब्रैकेट में डालना है. सो माइनस 15 माइनस माइनस बिकम्स प्लस. दिस इज द रूल. अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया इस पहले वाले एग्जाम्पल में. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस and this 9 will come out of the bracket. Okay, again minus one integer is negative, one integer is positive. अब ऐसे सिचुएशन में I have told you before this only कि आपको subtraction करना होगा. Okay, so let us do subtraction here. The answer will be 6. Okay, then another question comes कि यहाँ पर साइन कौन सी लगाना है. So obviously here the sign will be of greater number. तो greater number है यहाँ पर माइनस, greater number है 15, तो और इसकी साइन है माइनस, तो आप यहाँ पर माइनस की साइन लगाओगे आंसर में. दिस इज द फाइनल आंसर. द लास्ट वन, 20 and 36. तो चलो यहाँ पर लिखते हैं 20. हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन एंड देन 36. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर 20 में से 36 कैसे माइनस किया जाए. तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी. जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो. सो 36 माइनस 20, इस तरह से 6 माइनस 0 इट विल बी 6, 3 माइनस 2 इट विल बी 1. सो आंसर इज 16. बट यू नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग, जो ग्रेटर नंबर है आपको उसी का साइन लगाना है आंसर में. What is the greater number? That is 36 और इसको साइन लगा है माइनस वाली. So the final answer will be minus 16. Now let us learn how to simplify the integers. Okay, many of the students gets confused in this. Okay, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है. जस्ट आपको रूल्स याद रखने हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है. ओके, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ द इंटीजर्स. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव. अब इनके एडिशन के टाइम पर क्या आपको अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन के समय क्या अप्लाई करना है. सो लेट अस स्टार्ट. माइनस 13 प्लस प्लस 10. अब इसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे. यहाँ पर ये जो प्लस 10 है, यहाँ पर जो प्लस का साइन दिया है इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो चलो देखते हैं. माइनस 13 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, देन यू विल राइट 10. अगेन हियर आपको एक बात याद रखना है कि जब कभी भी दो इंटीजर्स इस तरह से साथ में आते हैं कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव,
one is positive integer here 10 and one is negative integer that is -13। तो इस समय में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है आपको, आप करोगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 13 minus 10 it will be 3 और the next step you have to take that is ग्रेटर नंबर का साइन आपको लगाना है, that is 13 is greater number और उसका साइन है माइनस, so -3 will be the final answer। Then the next one is minus in bracket -10 plus in bracket -35। यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर -10 है, तो माइनस माइनस होता है यहाँ पर प्लस, सो इट विल बिकम +10। अब यहाँ पर आप प्लस लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो +10 एंड द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक दैट इज प्लस माइनस। ओके, ब्रैकेट के अंदर -35 है और ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है, सो प्लस माइनस इट बिकम्स माइनस, देन 35 will come out of the bracket। ओके, ऑल राइट, सो यहाँ पर प्लस का 10 है और माइनस का 35 है, तो आप क्या करोगे, वही रूल हमें अप्लाई करना है। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर निगेटिव है तो इस समय में आपको करना होगा सब्ट्रैक्शन, यू विल डू सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलो यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 35 minus 10 मतलब आपको ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो 35 minus 10 इट विल बिकम 25। और यहाँ पर फिर से वही हमें एक रूल अप्लाई करना है कि ग्रेटर नंबर का साइन आंसर में लगेगा। व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, दैट इज 35 और उसको साइन लगा है माइनस वाली, सो द फाइनल आंसर विल बी -25। द नेक्स्ट वन इट इज 100 minus 200 प्लस 300। अब ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले एक बात याद रखना है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको स्टार्टिंग में लिखो। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप स्टार्टिंग में लिखोगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स भी स्पॉट आउट करते आना चाहिए, दैट इज 100 इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो आपको एक और चीज याद रखना है कि इंटीजर के सामने बिफोर इंटीजर इफ देर इज नो साइन इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 100 के पहले कोई यहाँ पर साइन नहीं है, इट मीन्स 100 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो चलो यहाँ पर 100 तो ऑलरेडी लिखा ही है, पहले लिखा है, तो इसको चेंज करने की, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लस 300, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस 300, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस 300 और निगेटिव इंटीजर को हम लिखेंगे लास्ट में, दैट इज -200। एक बात और आपको याद रखना है दैट वॉट एवर द इंटीजर यू आर शिफ्टिंग, शिफ्ट इट विद इट्स साइन। यहाँ पर 200 की जो है वो निगेटिव है साइन, इट मीन्स इट इज -200, तो आपको इसको पूरा शिफ्ट करना है विद इट्स साइन, इसके साइन के साथ आपको शिफ्टिंग करनी है। नाउ लेट अस फाइंड द आंसर। 100 plus 300 it will become 400 minus 200, the final answer will be 200। now वर्ड प्रॉब्लम्स से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है और इसकी वजह एक ही है कि आपको सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझना होगा कि यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए हुए हैं उन्हें किस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में या तो उनकी साइंस वगैरह कैसे लिखे। ओके, now look here, answer the following questions। A student is given 45 marks in a test. Due to a totaling error, 5 marks have been deducted. What will be the final score of the student? चलो इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसको 45 मार्क्स मिले हैं एक टेस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि टोटलिंग एरर में, मतलब जो टोटलिंग एरर था, टोटल करते समय वहां पर 5 मार्क डिडक्ट हुए। डिडक्ट मीन्स माइनस हुए। ओके, सो आपको ये पता करना है कि फाइनल स्कोर क्या रहेगा स्टूडेंट का। लेट अस राइट हियर 45 मार्क्स टोटल थे, मिले उसको, एंड टोटलिंग एरर के वजह से यहाँ पर -5। ओके, डिडक्ट का मीनिंग माइनस, तो यहाँ पर 45 minus 5, the answer will be 40। so this will be the final score of that student। the next one, subtract 89 from the sum of 78 and -54। अब आपको यहाँ पर समझना है
कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है 89 को। ओके, 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप फ्रॉम मतलब में से, फ्रॉम मतलब में से, किस में से आपको करना है? सम का मीनिंग होता है एडिशन, मतलब आप 89 को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कब? जब इन दोनों का आप सम ले लोगे, 78 और -54। तो स्टेप नंबर 1 में आपको इन दोनों का सम करना है, सम मीन्स एडिशन। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले एडिशन करते हैं, 78 प्लस यहाँ पर -54 है तो इसको ब्रैकेट लगाकर आप लिखोगे -54, इन दोनों का सम हो जाएगा 78 प्लस माइनस -54। सो द आंसर विल बी 78 -54। चलो यहाँ पर हम निकालते हैं 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 5 2, इट इज 24। तो चलो 78 माइनस 54 24। यहां पर हमारा एक स्टेप क्लियर हो चुका है, सम, दोनों की सम, द आंसर इज 24। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन सेज सब्ट्रैक्ट 89, मतलब आप 89 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 89 को फ्रॉम में से, किस में से? सम ऑफ 78 एंड 54। हमें ये पता है कि 78 और 50 -54 का सम है 24, एंड द फाइनल आंसर वी विल राइट हियर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 89 माइनस 24, 9 माइनस 4 इट बिकम्स, इट गिव्स 5, एंड 8 माइनस 2 इट गिव्स 6। तो सबसे पहले आंसर लिखते हैं, द आंसर विल बी 65। ओके, द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, दैट इज विच साइन विल कम। सो यहाँ पर ग्रेटर नंबर जो है उसकी साइन लगती है, हमें ये बात पता है, 89 इज द ग्रेटर नंबर, इसकी साइन है माइनस। सो द फाइनल आंसर विल बी -65। The next question, take away 300 from the sum of 140 and -83। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स समझने हैं। टेक अवे, टेक अवे का मीनिंग होता है माइनस। ओके, माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 300 फ्रॉम में से, मतलब 300 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करना है फ्रॉम द सम ऑफ, इसके सम में से, ये दोनों इंटीजर्स का सम निकालना है और फिर उसमें से 300 माइनस करना है। तो चलो सबसे पहले इसका हम सम निकालते हैं, 140, सम मीन्स एडिशन, तो यहाँ पर प्लस का साइन दिया हमने, और -83 को इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। सो 140 प्लस माइनस बिकम्स -83। सो इट विल बी, देखो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ, 140 माइनस 83, इट विल बी 10 माइनस 3 7। यहाँ पर हमने 1 बोरो किया था यहाँ पर, तो इट विल बिकम 13। ओके, 13 माइनस 8 5। ओके, सो द आंसर विल बी 57। ऑलराइट, यहाँ पर हमें इसका सम मिल चुका है। अब इस सम में से टेक अवे, टेक अवे मतलब माइनस करना है 300 को 57 में से। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुक हियर, टेक अवे 300 मतलब माइनस करो 300 फ्रॉम में से द सम ऑफ 140 एंड 83, 140 और 83 के सम में से आपको 300 माइनस करना है। सो सम इज 54 माइनस 300, एंड हियर कम्स द फाइनल आंसर। चलो हम इस तरह से करके देखेंगे। यहाँ पर 300, रूल तो यही होता है कि ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 300 माइनस 54, यहाँ पर 0 को हम 10 बना देंगे 1 बोरो लेकर, सो इट विल बिकम 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ पर 0 था, इसको हम 9 बना देंगे, 9 माइनस 5 4, और यहाँ पर हमने इसको 10 बनाने के लिए 3 से बोरो लिया था, इट विल बिकम 2, सो 2 विल बिकम 2 विल बी एज इट इज हियर डाउन। Okay, so the answer will be 246, but here this is not the final answer। आपको लास्ट में एक बात याद रखना है कि ग्रेटर नंबर की साइन हमेशा
फाइनल आंसर में लगती है। सो ग्रेटर नंबर इज 300 और इसकी साइन है माइनस, सो द फाइनल आंसर विल बी -246। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस रीड दिस एंड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। जब कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसे पहले समझो। ओके, द हाइट ऑफ अ प्लेस इज 2560 फीट। एक प्लेस है, ओके, चलो हम उसको इस तरह से मान लेते हैं। एक प्लेस है, उसकी हाइट है कितनी, 2560 फीट। ऑलराइट, अब अजय ट्रेवल्स डाउन फ्रॉम देयर अप्रोक्सीमेटली 100 फीट एवरी आवर फॉर 5 आवर्स। मतलब अजय यहाँ पर इस पोजीशन पर है, ओके, इस हाइट पर। अब अजय हर घंटे में 100 फीट नीचे आता है, हर घंटे में 100 फीट। सो 5 आवर्स तक वो नीचे आते रहता है। ओके, 5 आवर्स तक। तो सबसे पहले हम इसके 5 सेक्शंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ओके, इन एवरी आवर दिस इज 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5 आवर्स। ओके, यहाँ पर 5 घंटे हैं इस साइड में। अब हर एक घंटे में वो 100 फीट नीचे आता है, 100 100 100 100 एंड देन अगेन 100। 1 2 3 4 5, 5 घंटे में, हर घंटे 5 घंटे में तो कितना हो गया टोटल, इट विल बी 500 मीटर ही कम्स डाउन। ठीक है, सो व्हाट सॉल्यूशन कैन वी फाइंड फॉर दिस। हम इस तरह से लिखेंगे, 2560 फीट है टोटल। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 500 मीटर। ओके, एक घंटे में 100 फीट, तो 5 आवर्स में 500 फीट। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 100 फीट मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स में वो टोटल आ जाएगा 500 फीट। सो 2560। अब बोर्ड मास यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, सो मल्टीप्लीकेशन विल बी सॉल्व फर्स्ट। ओके, माइनस की साइन एज इट इज लगाओ और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इट विल बी 500, जो कि हमने यहाँ पर पहले से निकाल कर रखा है। ओके, 2560 माइनस 500, it will be 2060. So at what height is Ajay now? So Ajay 2060 feet height पर है। I hope the answer is very clear. सबसे पहले आपको इसी तरह से एक रफ आइडिया निकालना है कि किस तरह से इन वर्ड्स को आप इन नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। Now let us do the multiplication of the integers. Here two integers are given. The first one 8 is positive. The second one is negative, -9. So 8 multiplied by 9. But remember, if there is a negative integer, put it into a round bracket. और अब यहाँ पर जैसे हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। 8 9s are 72. Remember, if there are two integers और उसमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सो यहाँ पर आंसर में नेगेटिव साइन लगेगी। ओके, नेक्स्ट वन -3 -4, -3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर हम इन्हें ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, सो निग्लेक्टिंग द साइंस, लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन। 3 4s are 12। सिंपली आपको इस तरह से साइंस को बिना देखे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रूल ये होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, सो इट विल बी +12। यहाँ पर आपको साइन, आपने अगर से प्लस की साइन दिया तो भी चलेगा और नहीं दिया तो भी चलेगा। द नेक्स्ट वन 4 मल्टीप्लाइड बाय -10। अब -10 है तो इसे राउंड ब्रैकेट में डाल देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, अब यहाँ पर एक जो इंटीजर है -10, दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 टेंजा करेंगे, 4 टेंजा 40, लेकिन ये जो आंसर आएगा 40, ये आएगा -40। ओके, देन -40 इंटू 6, 40 6 जा
240 and there will be the sign of minus in front of the answer. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. अब आपको यहाँ पर एक चीज सीखना होगा कि जो माइनस और प्लस की साइन किस तरह से हमें समझना है कि माइनस साइन लगाना है या प्लस साइन लगाना है. सो यहाँ पर एक ट्रिक है आपके लिए, दैट इफ देर आर टू इंटीजर्स, यहाँ पर दो इंटीजर्स है, ओके, इवन और ऑड, आपको ये याद रखना है. माइनस की साइन अगर इवन नंबर में है, ओके, इवन नंबर, ओके, इवन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इवन, EVEN, इवन नंबर में है अगर से, जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो आंसर जो होगा, आंसर विल बी पॉजिटिव. ओके, आंसर विल बी पॉजिटिव, आंसर में पॉजिटिव इंटीजर आएगा. इफ माइनस साइन इज नंबर ऑफ टाइम्स इन ऑड, ओके, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, जैसा कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो आपका जो आंसर है, आंसर निगेटिव इंटीजर रहेगा. लेट अस सी हियर, यहाँ पर माइनस की साइन सिर्फ वन टाइम है, ओके, ऑड, ऑड नंबर मतलब माइनस की साइन सिर्फ एक बार आई है, तो यहाँ पर आंसर में भी माइनस की साइन लगी. यहाँ पर माइनस की साइन टू टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स टू टाइम्स एंड टू इज इवन, मतलब अगर दो बार माइनस की साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ वन टाइम है तो नेगेटिव आंसर आया है यहाँ पर. ओके, सो आपको यही चीज याद रखना है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ लुक हियर, I will write here one question. Minus 2 multiplied by minus 1 multiplied by minus 3 multiplied by minus 1. ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो इंटीजर्स है वो सारे निगेटिव है. अब सबसे पहले हम इनके सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. ओके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें जो आंसर मिलेगा उसे लिख लेंगे, जैसा कि 2 1 जा 2. अभी साइंस की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 2 आया, 2 1 जा 2, फिर बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 जा 6, इन दोनों का प्रोडक्ट आया 6, 6 1 जा 6, फाइनल आंसर इज 6. लेकिन यहाँ पर अब साइन कौन सी लगाना है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि नंबर ऑफ कितनी बार माइनस की साइन आई है, कितने निगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4. यहाँ पर 4 बार, 4 टाइम्स माइनस की साइन आई है एंड 4 इज इवन नंबर. अगर इवन नंबर में माइनस की साइन है, काउंट करना है इन्हें. इवन नंबर अगर से है 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो फिर आंसर विल बी पॉजिटिव. यहाँ पर ये 6 पॉजिटिव का आंसर रहेगा. ओके, तो आपको इसी तरह से देखना है और आपको साइन लगाना है. आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के रूल में अगर से माइनस माइनस होता है तो वो प्लस होता है, मतलब प्लस की साइन लगती है, और अगर प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस की साइन लगती है. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइनली यहाँ पर प्लस का आंसर. इस तरह से भी आप कर सकते हो, बट द इजिएस्ट वे इज दैट ओनली इवन एंड ऑड. अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन है तो आंसर विल बी नेगेटिव. नाउ लेट अस लर्न द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. ओके, जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वही रूल्स डिवीजन में भी होते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो नंबर, जो इंटीजर्स दिए हैं डिवीजन, जैसा कि 4 डिवाइडेड बाय 2, ओके, तो यहाँ पर बिना साइंस को देखे आप सिंपली डिवीजन कर लोगे. सो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, द आंसर इज 2. यहाँ पर सबसे पहले आंसर लिख लोगे आप. ओके, एंड जो अब यहाँ पर आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है. जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस. ओके, जो रूल आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं वही रूल डिवीजन में भी लगते हैं. माइनस इंटू माइनस इज इक्वल, आंसर विल बी इन प्लस, और डिवीजन में भी सेम ऐसे होता है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस साइन. ओके, तो ये भी, इसका आंसर भी प्लस में आता है.
ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी सेम होगा। एक यहाँ पर -4 है, -2 है, दोनों इंटीजर्स को माइनस साइन लगी है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। द नेक्स्ट वन 45 डिवाइडेड बाय -3। ओके, मल्टीप्लिकेशन में भी रूल ऐसा होता है, जैसा कि मैंने आपको इवन और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बताया था, सेम आपको डिवीजन में भी फॉलो करना है। 45 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो हमें पता है इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, 3 15 जा 45। आप 15 तक तो टेबल एटलीस्ट आपको लर्न होना ही चाहिए। 3 15 जा 45, द आंसर इज 15। अब यहाँ पर -3 है, ऑड नंबर ऑफ टाइम है माइनस की साइन, तो यहाँ पर आंसर में भी माइनस लगेगा। ओके, देन -12 डिवाइडेड बाय 6, -12 डिवाइडेड बाय 6। आपको सबसे पहले सिंपल तरीके से डिवीजन कर लेना है, साइन वगैरह को निगलेक्ट करते हुए। ओके, सो 6 2 जा 12, द आंसर इज 2। लेकिन आपको फिर से यहाँ पर एक इंटीजर माइनस में है, तो आपको यहाँ पर माइनस साइन लगानी होगी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब किस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, देखो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना है, इन ट्रिक्स को आपको याद रखना है, बिकॉज दिस विल लीड यू टू स्कोर द मार्क्स। और अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज गिवन हियर, -7 + 2 × 3। सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दिया है, जो नंबर्स दिए हैं मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ इतने सेक्शन को ही सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू BODMAS you have to follow the things. BODMAS you know very well, it is bracket of division, multiplication, addition, subtraction। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, और बाकी के जो नंबर्स है इन्हें एज इट इज लिखना है, -7 प्लस यहाँ तक, इसके पहले जो साइन है इसको भी नेग्लेक्ट करना है, मीन्स एज इट इज लिख लेंगे हम, और सिर्फ इतने सेक्शन को सॉल्व करेंगे। सो 2 × 3, 2 3 जा 6। ओके, अब यहाँ पर हमें रूल्स पता है, माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, सो 7 - 6 इट विल बी 1, और ग्रेटर नंबर है 7, इसकी साइन लगेंगी माइनस। नेक्स्ट वन 9 - 9 डिवाइडेड बाय 9। ओके, अगेन वी विल फॉलो BODMAS, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, बट यहाँ पर डिवीजन है। ओके, सो डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है कि साइन वगैरह की ओर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको डिवीजन करना है इसका। ओके, और इसे एज इट इज लिखना है, 9 माइनस यहाँ तक, सो 9 डिवाइडेड बाय 9 इट विल बी 1। नाउ 9 - 1 it will be 8, and this is the final answer. Next, number 3. Okay, again here we will follow BODMAS. So 5 multiplied by 10 divided by -10। अब यहाँ पर ब्रैकेट तो है, लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक आपको डिवीजन के साइन के बाद में -10 है, इसलिए इसको ब्रैकेट लगाया हुआ है। ओके, तो आप BODMAS को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट, यहाँ तो कोई ब्रैकेट में नहीं दिए हैं नंबर्स, लाइक सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि डिवीजन की वजह से इसको ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ऑफ भी नहीं है इसमें, डिवीजन, यस डिवीजन है, डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर जो ऑपरेशन हमें पहले करना है उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। सो उसके पहले वाला 5 मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज लिखना है, 10 डिवाइडेड बाय -10। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है, आंसर विल बी 1, 10 1 जा 10। ओके, आंसर विल बी 1, लेकिन यहाँ पर माइनस की साइन लगी है एक इंटीजर को, तो आप यहाँ पर माइनस की साइन लगाओगे। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन आफ्टर डिवीजन, अकॉर्डिंग टू BODMAS, डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन, 5 1 जा 5, और साइन लगेगी निगेटिव। द नेक्स्ट वन नंबर 4, 7 - 14 डिवाइडेड बाय 2। अगेन हियर आपको सिर्फ इतना सेक्शन लेना है डिवीजन वाला, तो 7 माइनस एज इट इज 14 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 7। okay, and 7 - 7 will be 0। so this is all about simplification। आपको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, बस इन बातों का आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशंस है अकॉर्डिंग टू BODMAS, तो इसे फॉलो करना है,
इसके पहले जो साइन आती है उसे एज इट इज विद नंबर इधर लिख लेना है, और सिर्फ इसका डिवीजन, यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करो, अगर डिवीजन है तो डिवीजन करो, और उसके पहले की साइन और नंबर्स को एज इट इज लिख लो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।